So, our today's topic is polar form of a complex number. पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म को समझने से पहले हम कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा. मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम कैसे निकालते हैं. मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो इस नंबर को हम आर्गेंट प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. So this is my real axis and say this is my imaginary axis. Suppose here is the point z, whose coordinates are x comma y. So this vertical distance is y and this horizontal distance is x. Suppose if I connect this point to the origin, then we know that this distance oz is by distance formula root x square plus y square. So mod z is nothing but root x square plus y square. So can we say that it is the distance of point x comma y and origin. कह सकता हूँ बेटा मैं. Or you can say that it is the distance between z and origin. Is that okay beta? We can also write this as mod z minus 0. Please do reply. Is it okay beta? Please do reply. Clear? Yes, sir. Okay. Sometime we also write this mod z as real part of z square plus imaginary part of z square. Okay. Suppose if I have a complex number z equals to x minus iota, 2 minus iota, 2 minus iota. Then mod z is, what is the real part? 2. So 2 square plus minus 1 square. So this is root 5. So distance of this point from the origin is root 5. Also one observation, if z is x plus iota y, then we know that z conjugate is x minus iota y. Now what is z into z conjugate? It is x plus iota y into x minus iota y. If I multiply them, I will be having x square plus y square. So this is nothing but mod z square. ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज मोड जेड स्क्वायर. यहाँ से एक और भी कंक्लूजन बनता है. इफ आई से दैट माई कॉम्प्लेक्स नंबर z इज नॉट इक्वल टू 0, then z into z conjugate upon mod z square is equals to 1. So you can say that multiplicative inverse of z is nothing but z conjugate by mod z square. Is that okay beta? Please do reply. Yes, sir. Okay. Now here comes the polar form. पोलर फॉर्म क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा. मान लीजिए मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एंड सपोज this complex number z is somewhat here, which represent x plus iota y.
हेलो। हेलो। हाँ अरे अरे बिजी है के? हाँ कहाँ पे बिजी हो? यार क्लास है, हैं? क्लास ले रहा हूँ, बाद में बात करूँगा। चलो ठीक है। ओके, तो नाउ सी, suppose this complex number z makes an angle theta with positive direction of x-axis. Okay, now what is theta here? Theta is the angle made by z with positive x-axis. Positive x-axis. इस थीटा को हम कहते हैं, थीटा इज नोन एज आर्ग्यूमेंट और वी कॉल दिस एज एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं इसको? आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड। इन शॉर्ट हम थीटा को ऐसे लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, और समटाइम्स वी राइट एएमपी, एम्पलीट्यूड। तो दोनों नोटेशन पता होनी चाहिए, बट वी विल बी यूजिंग आर्ग्यूमेंट। ओके, नाउ सी, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो वी नो दैट दिस डिस्टेंस इज वाई, दिस डिस्टेंस इज एक्स। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम this distance is root x square plus y square, and which is same as mod z. Now please tell me, can we write this complex number as, if I multiply and divide by root x square plus y square, so I will be having this. Can we write this way? Please tell me. हाँ जी बेटा. Yes, sir. Okay, now please tell me, if I take this as OPL, in triangle OPL, please tell me what is x by root x square plus y square. What is that? Cos theta. Yes, sir. Cos theta. And y upon root x square plus y square is sin theta. Sin theta. So therefore this complex number can be written as z, and this quantity is mod z, that is cos theta plus iota sin theta. Is that okay? Please do Yes, reply. sir. So therefore this is known as the polar form, but this polar form depends on the argument कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में। अभी तो हमने वी हैव टेकन द स्टैंडर्ड कंडीशन दैट द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, जरा समझने की कोशिश करना, कुछ बेसिक चीजें हैं यहाँ पे जो हमें समझनी होंगी। सी, अगर मैं आपसे कह दूं कि यार मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, तो डेफिनेटली ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से उसमें है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक और चीज, अगर मान लीजिए मैं इसी ट्रायंगल में tan थीटा निकालूं, तो tan थीटा आएगा y अपॉन x, तो आई कैन राइट थीटा इज tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x. So we can also define theta as argument of z is tan inverse y upon x. Okay, so now let us consider this clearly. मुझे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखना होगा? आई नीड टू राइट z एज mod z into cos theta plus iota sin theta. Now here is the point 1 comma 1, and if I assume that this angle is say theta, then clearly this distance is 1, this distance is 1, and mod z is root 2. Is that okay? Now Yes, sir. please tell me what I will do in this triangle. I need to find theta. So what is tan theta? Y on x, that is 1 over 1. So theta is pi by 4. So argument of z is pi by 4. Now how we define this? So z is root 2 into cos pi by 4 plus iota sin pi by 4. आपने क्या देखा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस आयोटा को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई। नाउ व्हाट विल हैपन? सपोज इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ आई से z इक्वल टू 7, इसको रिप्रेजेंट करना पोलर फॉर्म में, तो वेयर यू विल लोकेट द 7? 7 विल बी ऑन द रियल एक्सिस,
This is 7 comma 0. Now can you tell me what is that angle? Theta is 0 degree. Now what is mod z? Mod z is 7. So we can write this complex number is 7 times of cos 0 degree plus iota sin 0 degree. Is that okay? Please do reply. Now we define one more term here that is known as the principal argument. How we define principal argument? And the argument is depend on the principal argument. We say that if theta belongs to open interval minus pi to close interval pi, then theta is known as principal argument. अब ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट हम कैसे निकालेंगे ये जरा समझने की कोशिश करना. Try to understand that. Suppose if z is lying in the first quadrant. Suppose this is your complex number x plus iota y. Suppose this angle is alpha. This angle is alpha. Then in this case argument of z is alpha. But if in case suppose complex number second quadrant में lie कर रहा है like this here and this angle is alpha, then what you will say about this entire angle? This angle is pi minus alpha. So then in the second quadrant your argument of z is pi minus alpha. अब यहाँ एक चीज है जो आपको समझनी है. देखिए अगर आप इस प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को ध्यान से देखेंगे, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं माइनस पाई टू पाई. बेटा पाई कितना होता है 180 डिग्री एंगल. तो नाउ मैं यहाँ पे एक सेपरेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज द कंप्लीट रोटेशन ऑफ 180 डिग्री. कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज. तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए तो आपको एंगल जो है वो यहाँ तक आएंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन में हो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सपोज द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, सपोज दिस इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वील टेक क्लॉकवाइज रोटेशन. विल टेक दिस एंगल इज माइनस अल्फा. इनफैक्ट है तो अल्फा ही मैग्नीट्यूड में. देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज माइनस अल्फा. And if the complex number is in the third quadrant, suppose this angle is alpha, then what you will say this angle? Pi minus alpha. Pi minus alpha. But लेकिन हम कौन सी रोटेशन कर रहे हैं? Which rotation we are doing? Clockwise. नहीं, anti-clockwise. It is clockwise rotation. So we'll put minus sign. This is pi माइनस पाई प्लस अल्फा. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये आएगा. तो डिपेंडिंग ऑन द क्वाड्रेंट, ध्यान से देख लीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा अल्फा, सेकंड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आएगा पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज माइनस पाई प्लस अल्फा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट आएगा माइनस अल्फा. जब भी हम वो निकालेंगे आर्ग्यूमेंट. नाउ व्हाट इज अल्फा? अगर यहां से मैं दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज x, tan अल्फा इज y अपॉन x, सो अल्फा इज tan इनवर्स y अपॉन x. I will be taking modulus sign here, whatever be the because this theta is alpha is acute, alpha will be acute. मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, आपको समझ में भी आ जाएगा. एग्जाम्पल 1, सपोज माई कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा. कौन से क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है? प्लीज टेल मी. थर्ड. सेकंड क्वाड्रेंट बेटा. -1 √3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? अच्छा हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा. इट विल बी लाइक हियर. अब मुझे इसका पोलर फॉर्म लिखना, तो सबसे पहले आप ऐसे लिखेंगे इसको, मोड जेड इंटू कॉस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड
प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ये थीटा हमेशा वो नहीं होता, आर्ग्यूमेंट होगा बेटा, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई विल बी फाइंडिंग मोड जेड। व्हाट इज मोड जेड? -1 square is 1 plus 3. Mod z is 2. Now for argument of z, first I will find tan alpha. क्या बताया था मैंने? मोड y अपॉन x कितना आ जाएगा? √3। तो अल्फा कितना आ गया बेटा? π/3। ओके, अब क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या आएगा? पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/3, so that is 2 π/3. So this complex number can be written as z equal to 2 times of cos 2 π/3 plus iota sin 2 π/3. Is that okay? Please tell me. Clear Yes, beta? sir. Another example. Suppose my complex number is z equals to -1 minus iota. Can you locate the quadrant of the complex number? So third. Yes, -1 minus 1. So first find mod z. It is -1 square minus 1 square. That is equals to √2. Okay. Then next we will find tan alpha. Modulus of y upon x. तो अल्फा कितना आ गया? π/4। थर्ड क्वाड्रेंट में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते थे? -π प्लस अल्फा, Pi plus alpha. तो -π प्लस π/4, that is -3 π/4. So therefore this complex number z equal to -1 minus iota can be written as √2 into cos of -3 π/4 plus iota sin of -3 π/4. Is that okay? Clear है बेटा सबको? हाँ जी। Yes, sir. Okay. Suppose my complex number is like this. Z is equals to √3 minus iota. Can you tell me कौन से क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर? फोर्थ क्वाड्रेंट. This complex number lies in fourth quadrant. तो पोलर फॉर्म रिकॉल करिए क्या होती है पोलर फॉर्म? z इक्वल टू मोड z इंटू कॉस ऑफ इट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा साइन आर्ग्यूमेंट ऑफ z. देखिए एक तो इससे कंफ्यूज मत होना, मैं एंगल आर्ग्यूमेंट ले रहा हूं. इससे पहले वाले केस में जो मैंने यहाँ लिखा था इसका पोलर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था तो ये थीटा उसका आर्ग्यूमेंट था. ठीक है, तो बाकी जगह भी क्या आएगा? आर्ग्यूमेंट से ही हमें हमारी बात बनेगी. तो नाउ मोड जेड इज √3 स्क्वायर इज 3 -1 स्क्वायर इज 1, so it is equals to 2. Now what is tan alpha? Modulus of -1 over √3, 1 by √3, so alpha is π/6. अब कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से उसमें लाइक कर रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट में. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा? -π/6. Minus alpha. -π/6. So we can write this as z is equal to 2 times of cos of -π/6 plus iota sin of -π/6. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. तो एक बात समझ लीजिए, देखिए हो क्या रहा है. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आपका रोटेशन होगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो द रोटेशन इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लाइक दिस. इज दैट ओके? Yes, sir. अब एक बात और समझिए, मैं यहाँ पे एक और छोटा सा वो बता रहा हूं. यूलर फॉर्म हमने ये पढ़ रखा है, e की पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. ये अगर याद करिए हमने एक्सपेंशंस में किया था जब हमने लिमिट्स की एक्सपेंशन करवाई थी.
देखिए cos थीटा की जो एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 4 फैक्टोरियल, और साइन थीटा की एक्सपेंशन होती है ये, लाइक दिस, और e की पावर x की एक्सपेंशन होती है 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1, लाइक दिस। अगर मैं यहां पर x को आयोटा थीटा से रिप्लेस करूं तो नाउ व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, देखिए इस टाइप से एक्सपेंशन बननी स्टार्ट हो जाएगी। आयोटा रेज़ टू पावर 4 थीटा रेज़ टू पावर 4 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 5 एक काम करिए, इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। एक तो 1 आ गया, व्हाट इज आयोटा स्क्वायर, -1, व्हाट इज आयोटा रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। आर यू गेटिंग दिस, प्लीज टेल मी, Sir. व्हाट इज आयोटा रेज़ टू पावर 6 -1 and so on. Now what is imaginary part, what is iota cube minus iota, what is iota raised to a 5 iota। Iota. now see, ये किसकी एक्सपेंशन है, cos थीटा की, ये किसकी एक्सपेंशन है, sin थीटा की। Sin theta. so we have proved that e to the power iota theta is cos theta plus iota sin theta। तो जब आप पोलर फॉर्म लिख रहे हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की, ऐसे z इक्वल टू मोड z cos theta plus iota sin theta, I can always express mod z into e to the power iota theta। Is that okay? Now what is theta? What is theta? Theta is argument। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि z इक्वल्स टू आयोटा, इसको इसकी पोलर फॉर्म में लिखो। आप खुद देखिए आयोटा कहाँ आएगा, इस एक्सिस पे आएगा 0,1। व्हाट इज दिस एंगल, π/2। एंड व्हाट अबाउट दिस, modulus of z is 1, so we can directly write this as 1 into cos π/2 plus iota sin π/2। is that okay? which is same as e raised to power iota π/2। now suppose the complex number lies here, suppose say -3, so this is -3,0। now what is this angle, this angle is pi, and what is this mod z, mod z is 3। so if the complex number is -3 plus iota 0, we can write this as 3 into cos pi plus iota sin pi। is that okay? please tell Yes, me, sir. 3 into e to the power iota pi, ऐसे भी लिख सकते हो यूलर फॉर्म में। आई होप इट इज क्लियर बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. okay, now suppose the complex number is z equals to minus iota, it will lie here। कौन से क्वाड्रेंट में है, तो रोटेशन कैसे लेनी है आप मुझे बताइए, विच रोटेशन यू विल टेक, Clockwise. clockwise। so what about this angle, -π/2, is that okay? so Yes, sir. so इसका मॉडल्स कितना है, 1 cos of -π/2 plus iota sin of -π/2। we can also write e to the power minus iota π/2। I hope now the concept of polar form is clear beta, please do reply। Yes, sir. तो क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसे रैंडमली आंसर नहीं करना है। समझ में आ रही बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके समझिए, अब हमने z को लिखा है
जेड इज इक्वल्स टू मोड जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, ऐसे लिखा है। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ओके, अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लूँ तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ प्लस वी कैन राइट दिस एज आयोटा थीटा। व्हाट इज लॉग बेस ई ऑफ ई, क्या आएगा 1। So this way we can write it. What is theta here? Argument of z. Theta is argument of z. Okay. Suppose the question is z is equals to 1 plus iota. तो हमने इसका पोलर फॉर्म क्या लिखा था, √2 e to the power iota pi by 4. If I take log both sides, then what I will obtain? Log of 1 plus iota is equals to log mod z, कितना आएगा √2 प्लस iota pi by 4. Is that okay? क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, फाइंड द रियल पार्ट ऑफ log of 1 plus iota, कितना है, that is equals to log base e √2. Is that okay? Please tell me. Yes, sir. अब कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन इज प्रूव दैट iota raised to power iota is purely real number, purely real number. तो कैसे करेंगे, पहले आराम से समझना। प्लीज टेल मी, आयोटा का पोलर फॉर्म क्या बताया था मैंने, ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 बताया था। हाँ जी बेटा। सो आयोटा रेज टू पावर आयोटा इज ई की पावर आयोटा पाई बाय 2 होल आयोटा, which is equal to e raised to power iota square into pi by 2, that is e raised to power minus pi by 2. What is that? Which is a purely real number? Please tell me. Yes, sir. Which is a purely real number. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। The question is find the real part of 1 minus iota raised to power minus iota, इसका रियल पार्ट निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसकी पोलर फॉर्म में लिखेंगे। ओके, कैसे लिखेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस आयोटा कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ दैट, √2. विल राइट tan अल्फा, अल्फा इज पाई बाय 4, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट। वी विल राइट दिस एज √2 इंटू ई की पावर आयोटा पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 4, सॉरी। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या आ जाएगा इस केस में, माइनस पाई बाय 4। अब आपने पढ़ा था अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था तो लॉग बेस ई ऑफ जेड क्या था, क्या आया था भाई, ये लॉग ऑफ मोड जेड प्लस आयोटा क्या था, जल्दी बताइए, आयोटा टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा था हमने ऐसे बेटा। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. ये देखिए, now what I will do here, since z is equals to 1 minus iota raised to power minus iota, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा, लॉग का बेस ई है बेटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, लॉग बेस ई ऑफ √2 प्लस आयोटा माइनस पाई बाय 4। कैसे आया पता है ना? Yes, sir. हाँ,
ओके, आयोटा से मल्टीप्लाई कर लो यार। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर बाय पाई बाय 4। सो वी हैव log base e of z is minus iota. Now what is iota square? Minus 1. Okay. Now how will write this? We can write this as minus pi by 4 minus iota log base e of root 2. Then z is equals to e raised to power minus pi by 4 minus iota log base e of root 2. Is that okay? Please do reply. ये बात क्लियर है बेटा? Yes, sir. Now we can write z is equal to e raised to power minus pi by 4 e raised to power कितना आएगा, आयोटा माइनस लॉग रूट 2। क्लियर है वाली बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब ये बात बताइए मुझे, e टू द पावर आयोटा थीटा क्या बताया था? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. तो उसका थीटा क्या है? माइनस लॉग रूट 2। Minus log root 2. तो z इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर माइनस पाई बाय 4। यू विल राइट दिस एज कोसाइन ऑफ माइनस लॉग रूट 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस लॉग रूट 2। इज दैट ओके? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब हमारे से क्वेश्चन में क्या डिमांड किया था, आप ही बताइए। वी हैव टू फाइंड द रियल पार्ट ऑफ दिस। सो रियल Real part. पार्ट ऑफ z इज e raised to power minus pi by 4 cos of minus log root 2, and cos of minus theta is cos theta, cos of log root 2. Is that okay? Clear है Yes, सबको? sir. I hope it is clear to everyone. हाँ जी बेटा, हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now see the next section of the question. Now we'll be discussing the question based on argument and modulus. That is problem based on argument and modulus. सबसे पहले जरा समझिएगा, अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं मोड z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a वेयर a इज एनी कांस्टेंट एंड a इज पॉजिटिव, बट ऑब्वियस क्योंकि मोड z नेगेटिव नहीं होगा, तो ज्योमेट्रिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है पहले समझिएगा। अगर मैं यहां से देखूं व्हाट इज मोड z, कैन यू टेल मी व्हाट इज मोड z? इफ आई कंसिडर द कॉम्प्लेक्स प्लेन, मोड z इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो z क्या है, एक वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मुझे क्या करना है, वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा a रहे, लाइक दिस लाइक दिस। तो इसका लोकस हम ढूंढ रहे हैं। लोकस, व्हाट डू यू मीन बाय लोकस? ए पॉइंट विच सेटिस्फाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो वी विल ऑब्टेन ए सर्किल। ये सर्कल आएगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस a। अगर आप कार्टेशियन में करना चाहते हैं तो ऐसे भी देख सकते हैं। z को मैंने x प्लस आयोटा y ले लिया। व्हाट इज मोड z? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। व्हाट इज मोड z स्क्वायर? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इफ आई टेक द मॉडुलस स्क्वायर देन इट इज a स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। सो व्हाट इज दैट? इट इज द सर्किल having center 0 0 and radius a. Is that okay? Please tell me. Clear है सबको ये बेटा? Yes, sir. Now suppose if somebody asks that what this represent, mod z less than equals to 2। अगर आप देखें इसका मतलब ये बना कि mod z equals to 2 and mod z less than 2।
तो बेसिकली ये उन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा अगर इफ आई ड्रॉ ए सर्किल जिसका रेडियस है 2 यूनिट, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? एक तो वो सारे पॉइंट जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे होंगे, दैट इज ऑन द सर्किल, एंड द सेकेंडली द पॉइंट विच लाइज इनसाइड द सर्किल, ये सारे पॉइंट। इज दैट ओके? क्लियर है सबको बेटा ये वाली बात? हाँ जी। Yes, sir. So these points will be there, okay? And if I write only this part, this is nothing but interior of the circle. This is nothing but interior of the circle. Clear है ये वाली बात? एक क्वेश्चन है बड़ा Yes, अच्छा sir. क्वेश्चन है, लेट अस डिस्कस दैट क्वेश्चन। आराम से समझिएगा। क्वेश्चन ये दे रखा है, मान लीजिए A is the set, it is a collection of those complex number Z such that mod Z is less than equals to 2, and my set B is collection of all those Z such that 1 minus iota into Z plus 1 plus iota into Z conjugate greater than or equals to 4. The question is find the area of the region A intersection B. बनाते हैं इसको, पहले समझते हैं। पहले वाला सेट तो आपको पता है, तो पहले इसको हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ द सर्किल जिसका सेंटर क्या है 0 0। आर यू गेटिंग दिस? तो मान लीजिए ये Yes, आपके, sir. सपोज दिस इज द सर्किल मोड जेड। हमारे पास ये सर्कल आ गया जिसका सेंटर है ओरिजिन और रेडियस है 2 यूनिट, ओके। चलो पहले, और इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको शेड करूं, इसका मतलब है सर्कल हो गया और इसके इंटीरियर पॉइंट्स आगे सारे। इज दैट ओके? कैन वी से लाइक दिस बेटा? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ये सारा रीजन जो है सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब सेकंड वाले को पहले एक काम करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो जेड को कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई ले लो, तो जेड कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। सो 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस आयोटा इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा एक्स, and minus iota square is plus 1, so that is plus y plus x minus iota y plus iota x, and again minus iota square is plus 1, so plus y greater than or equal to 4. Now see, there will be some cancellation. So what we obtain, 2x plus 2y greater than or equals to 4, that is x plus y greater than or equals to 2. So this represent the line x plus y equals to 2 and the portion outside. So this is the line. Are you getting this? आपने Yes, sir. लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ा होगा, अगर मैं इसको कॉमन रीजन देखेंगे तो कॉमन रीजन ये वाला आएगा, तो हमें ये वाला एरिया निकालना। दिस इज द एरिया, दिस सेट रिप्रेजेंट द ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो ये एरिया कैसे निकलेगा बता सकते हो? हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इस सर्कल का एरिया कितना है पहले ये बताइए। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? व्हाट इज एरिया ऑफ Pi r सर्कल? square. Area of circle is r square is 2, so 4 pi. Is that okay? क्लियर है वाली बात बेटा? हाँ जी, प्लीज डू रिप्लाई। Yes, sir. अब आपको खाली क्या करना, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, तो क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, इसका 1/4 आ जाएगा, Yes, sir. तो पाई आ गया। अगर इसमें से ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मैं, व्हाट इज एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल?
area of this triangle is half. What is base? 2. What is altitude? 2. That is 2. So the required area is pi minus 2 square units. Is that okay? Please tell Yes, me. sir. Clear है सबको बेटा? Now see, Yes, sir. अब आपने देखा कि क्वेश्चन उन्होंने देखिए कहां से फ्रेम कर लिया था. समझ में आ रही बात? Is it clear बेटा? Yes, sir. Okay, now let us do one more problem. The question is, if mod of 2z minus 1 is equals to mod z minus 2, then the question is prove that mod z is equals to 1. इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है वो जरा समझ लीजिएगा. What I will take, let z be any complex number x plus iota y. So substitute here. So mod of 2x plus 2 iota y minus 1, that is x plus iota y minus 2. Now we can write this as 2x minus 1 plus 2 iota y modulus x minus 2 plus iota y. अगर ये दोनों मोड इक्वल है तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे मोड के. सो विल बी हैविंग 2x minus 1 होल स्क्वायर plus 4y square is equals to x minus 2 whole square plus y square. Is that okay? Please do reply. Yes, sir. 4x square minus 4x plus 1 plus 4y square is equals to x square plus 4 minus 4x plus y square. इन टर्म्स को इधर ले आते हैं. So we have 3x square minus 4x will get cancelled plus 3y square is equals to 3. That is x square plus y square equals to 1. What is x square plus y square? Mod z square is equals to 1. So this will imply mod z equals to 1. So which proves the relation. Clear है बेटा? हाँ Yes, जी. sir. Now this is how we have proved this. Okay. Now see how we'll handle this. और समझिए. एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करना. क्वेश्चन है, if mod z is equals to 1, the question is prove that 1 minus z plus 1 plus z is purely imaginary number. अब एक बात जरा ध्यान से समझना, mod z इक्वल्स टू 1 जब भी होगा तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी 1 यूनिट. इफ आई टेक दिस एंगल एज थीटा, तो ध्यान रखिएगा जब भी मोड z इक्वल टू 1 हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ले लीजिए z इक्वल टू cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. आप चेक कर सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड z कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू 1. इज दैट ओके? प्लीज डू रिप्लाई. क्लियर है वाली बात? तो तब भी यूनिट सर्कल हो. Yes, sir. देखो अगर ऐसे दे रखा हो मोड z इक्वल टू 2, तो तब मैं z को क्या लिख सकता हूँ? 2 टाइम्स ऑफ cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी z इक्वल टू 2 e की पावर आयोटा थीटा. ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो इन जनरल अगर मोड z इक्वल्स टू r दे रखा है तो मैं z को ऐसे लिख सकता हूँ r e की पावर आयोटा थीटा. आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी. Yes, sir. इसका फायदा क्या होगा? अगर अब मुझे इस नंबर को प्योरली इमेजिनरी दिखाना है तो मुझे इसका रियल पार्ट 0 दिखाना पड़ेगा इस नंबर का. तो लिख लेते हैं. तो z को हमने क्या लिया है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें. नाउ व्हाट इज z? 1 minus cos theta minus iota sin theta, and my denominator is 1 plus cos theta plus iota sin theta. What I will do, I will rationalize this. कैसे करेंगे rationalization?
इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। See what will we get from here? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं पहले। We will be having 1 minus cos square theta, and then okay, we are doing term by term multiplication. Just wait. And then minus iota, that is plus, sorry, minus sin square theta, क्योंकि ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? आई एम फर्स्ट कैलकुलेटिंग द रियल पार्ट, प्लस आयोटा टाइम्स ऑफ माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. Now see, in denominator I will be having 1 plus cos theta whole square plus sin square theta. Now this will get cancelled. 1 minus cos square theta is sin square theta. Now see, what is its real part? This is 0 plus iota times of something upon this quantity. Can we say that it is a purely imaginary number? Please tell me. Yes, sir. So therefore Z is purely imaginary. हो गया? हाँ जी. Yes, sir. Now we have one more question, and ये IIT JEE का क्वेश्चन है. आराम से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. Question is, if mod Z is equals to 1, and the question is then find the range of real part of 2 iota Z over 1 minus Z square, where Z is not equals to plus minus 1. यानी कि हमें देखना है कि रियल पार्ट ऑफ दिस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है. तो अभी मैंने बताया था, अगर मोड जेड इक्वल्स टू 1 होता है तो जेड को क्या लेंगे? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. प्लीज टेल मी. तो हमें इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट निकालना. तो 2 आयोटा जेड ओवर 1 माइनस जेड स्क्वायर क्या आएगा बेटा? विल मल्टीप्लाई दिस. We will be having 2 iota times of cos theta plus iota sin theta. Is that okay, beta? Yes, sir. And in denominator I will be having 1 minus cos theta plus iota sin theta whole square. Okay. Now let us simplify this. Let us open this whole square. Cos square theta plus sin square theta. Why I am writing plus sin square theta? Because iota square is minus 1 and minus minus is plus. And then we'll have minus 2 iota cos theta sin theta. Now please tell me what about this expression 1 minus cos square theta. कितना आएगा? Please tell me. Sin square theta. So we have 2 sin square theta minus 2 iota cos theta sin theta. What I will do, this 2 all these things will get cancelled. Iota को अंदर ले जाते हैं, तो iota cos theta minus sin theta. From denominator क्या कॉमन ले सकते हैं डिनोमिनेटर से? प्लीज टेल मी. sin theta. So we have sin theta minus iota cos theta. अगर इसको कैंसिल करूंगा तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, या तो माइनस साइन ऊपर से कॉमन ले लेता हूं. आर यू गेटिंग दिस बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir.
So what I obtain? -1 by sin theta minus cosec थीटा. अब आप मुझे बताइए हमें रेंज किसकी निकालनी है? माइनस कोसेक थीटा की. तो कोसेक थीटा की रेंज क्या होती है? प्लीज टेल मी. -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. और माइनस कोसेक थीटा की रेंज भी क्या आएगी? यही सेम आएगी. दैट इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. सो दैट इज द आंसर. इज दैट ओके बेटा? प्लीज टेल मी. Yes, sir. तो देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस खाली आपको उसका इम्प्लीकेशन करना आना चाहिए. ठीक है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज सोल्व mod z is equals to z plus 1 plus 2 iota. ये इक्वेशन सोल्व करनी, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन. क्या करेंगे? z को हम ले लेंगे x प्लस आयोटा y. तो बेटा मोड z कितना आता है? √x² प्लस y². z इज x प्लस आयोटा y. Comparing real and imaginary part. If I compare real and imaginary part, then what will happen? √x² plus y² is equals to x plus 1. Is that okay, beta? Please tell me. Yes, sir. And y plus 2 is equals to 0. तो इसको सोल्व करेंगे तो y कितना आएगा? -2. तो y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो √x² plus 4 is equals to x plus 1. Now squaring both side. x² will get cancel out. 2x is equals to 3. So x is equals to 3 by 2. So what is my complex number? Z is equal to x plus iota y. That is 3 by 2 minus 2 iota. That is the required complex number. I hope it is clear, beta. Yes, sir. तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको बेटा. इज इट क्लियर बेटा? हाँ जी. Yes, sir. तो इतना मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, उसको सिर्फ आपको अच्छे से देखना है कि कैसे इसको हैंडल करना है. एक और क्वेश्चन करा रहा हूं लास्ट, जरा ध्यान से देखिएगा. द क्वेश्चन इज फाइंड द लोकस ऑफ z if real part of z plus 1 is equals to mod z minus 1. लोकस का मतलब आपको देखना कि कौन सा कर्व आ रहा है ज्योमेट्रिकली. हमने z को ले लिया x प्लस आयोटा y. सो द रियल पार्ट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस 1 is equals to modulus of, can I write this as directly x minus 1 plus iota y? What is the real part of this? X plus 1 is equals to mod of what I will do, squaring both side, the mod of this quantity square. Can we write this as x minus 1 whole square plus y square is equal to x plus 1 whole square. This is x square plus 1 plus 2x, and this is x square plus 1 minus 2x plus y square. So y square equal to 4x. क्या है ये? Parabola. So the locus is parabola. Is that okay? Yes, sir. I hope ये जितना हमने कराया है ये सबको क्लियर हो गया बेटा. देखिए एज फार एज Yes, sir. जेई मेंस इज कंसर्न्ड लगभग हो चुका है हमारा वर्क, लेकिन मैं फिर भी आई विल बी गिविंग यू 2 more क्लासेस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें थोड़ा सा एडवांस का मैं करवाऊंगा. इज दैट ओके बेटा? आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर बेटा. ये आज की Sir. क्लास ठीक है. तो आगे मैं कुछ ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो थोड़ा तुम्हें लोकस के बारे में भी बताएंगे. तो अभी मैं बेटा आई एम स्टॉपिंग हियर एंड 5 मिनट के ब्रेक के बाद विल बी स्टार्टिंग द 12th क्लास सेशन. ठीक है. ओके, बाय एवरीवन.